أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان اللہ اللہ نے رمضان کا ذکر کیا قرآن میں جو آپ کو واضح آیت ملتی ہے پورا رکوع ہے اس بارے میں لیکن رمضان کے ساتھ ہی جو بات کی کیا ہے اصل خصوصیت رمضان کی اللہ نے قرآن نازل کی سبحان اللہ اللہ نے اس بابرکت مہینے میں اپنا کلام عطا فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس قرآن پاک کی اہمیت کیا ہے اس رمضان کی اہمیت کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اچھا چلو عام دنوں میں تو تمہیں موقع نہیں ملتا مجھے ہمیشہ یوں لگتا ہے جب رمضان آتا ہے نا جیسے دوڑ ہو رہی ہوتی ہے اور سب بھاگ رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں کچھ ایک دو ایسے ہوتے ہیں شر پسند جو دوسروں کو گرا رہے ہوتے ہیں دھکے دے رہے ہوتے ہیں ان کو بڑھنے نہیں دیتے آگے تو پھر کیا ہوتا ہے ان جو شریر ان کو پکڑ لیا جائے اور باقیوں کو کہا جائے اب تم دوڑو تو سب دوڑ لگائیں گے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی جنت میں پہنچانا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کو ضرور موقع دیا جو اس نے کہا کہ مجھے موقع دے دے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع ضرور دیا لیکن ہمیں ایک رمضان ایک مہینہ ایسا دے دیا کہ جس میں شیطان بند ہی کر دیا جائے کوئی دن میں یہ نہیں کہ 1 گھنٹہ دے دیا جائے 2 گھنٹے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے کا پورا مہینہ عنایت فرما دیا اور پھر صرف شیطان کو بند کیا اس کے ساتھ اور کتنی فضیلتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کے ساتھ جوڑ دی مثلا جو نوافل ہیں ان کا ثواب کس کے برابر کر دیا فرضوں کے برابر نیکی کتنا اجر اس کا بڑھا دیا گیا جو 10 گنا تھی وہ کہاں پہنچا دی وہ 70 گنا جو 70 گنا تھی وہ اس سے بھی آگے 700 گنا اور کیا کیا جاتا ہے جنت کے سارے ہی دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس مرضی دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہو داخل ہو جاؤ حدیث میں ہے بڑا خوبصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل تم پہ ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ تمہارے پاس رمضان آ گیا برکت والا مہینہ حق و تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں متوجہ تو وہ ہر وقت ہیں لیکن خاص اپنی رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں سبحان اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں کون کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے درمیان مقابلے کو دیکھتے ہیں پورا سال ہمیں ایسے مقابلے کرنے کی نیکیوں میں دوڑ لگانے کی توفیق نہیں ملتی جتنی مرضی پلاننگ کر لیں جتنی مرضی کوشش کر لیں نہ تو اس طرح روزے رکھے جاتے ہیں نہ ہی اس طرح کے قیام کا موقع ملتا ہے نہ اس طرح قرآن پڑھ پاتے نہ ہی دورہ قرآن ہر روز گھر سے نکلنا کہاں تو 8 دن بعد نکلنا مشکل ہوتا ہے اور کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر روز توفیق دے دیتے ہیں یہ مقابلے کو دیکھتے ہیں سبحان اللہ اور ملائکہ کے سامنے فخر کرتے اللہم اجعلنا منہم بس اللہ کو اپنی نیکی دکھاؤ کیا کرو اللہ کو اپنی نیکی دکھاؤ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے سے محروم رہ جائے موسم بہار سیل لگی ہوئی ہم کہتے ہیں 50% اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی پرسنٹ لگائی 70 تو منیمم ہے
मिनिमम है, छोटी से छोटी नेकी पे 70 करोड़, और जो बड़ी बड़ी नेकियां हैं उन पे कितनी मिलेगी? अल्लाह सुब्हाना व ताला हम सब के नसीब में करे। तिबरानी की एक रवायत है, बहुत से रोजादार ऐसे हैं उनके हिस्से में भूख और प्यास के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। अल्लाह हमें उनमें शामिल ना करे। दुनिया की नजरों में तो हम बड़े रोजेदार हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ हमारा कोई रोजा भी कबूल नहीं हो रहा। उसके लिए जरूरी है कि अपनी महफिलों को चेंज करें। अपना सिर्फ और सिर्फ ये मोबाइल जो है ना, सबसे ज्यादा जो हमें डिट्रैक्ट करेंगे वो क्या करेंगे, बाकी तो सारा दिन टीवी भी बंद हो जाते हैं, लेकिन मोबाइल हाथों में आता है तो फिर उस वक्त भी एहतियात करनी है, अपने कानों की, अपने आंखों की, अपनी जुबान, कुछ नहीं दिखाना। क्यों? कि एक महाज पे है हम। अपने रब को राजी करना है हमने, इस महीने में मनाना है उसको। हम इतने गुनाह कर रहे हैं, हम इतने कहने के अमल से दूर हो चुके हैं मुसलमान, उसके बावजूद अल्लाह सुब्हाना व ताला ने अपनी रहमतों को नहीं समेटा। अल्लाह सुब्हाना व ताला उसी तरह नाजिल फरमा, उसी तरह मौके दे रहे हैं। मशरिक से मगरिब तक एक दरवाजा खुल गया है तौबा के लिए, और फिर भी अपने रब को ना मना सके, फिर भी ऐसे रोजे रखें और पूरा महीना गुजार दें कि एक रोजा भी कबूल ना हो, सिर्फ भूख और प्यास हमारे हाथ आए। अब्दुल्ला बिन मसूद से पूछा गया, रमजान का इस्तकबाल कैसे करते थे? तो बड़ी खूबसूरत बात कही, बड़ी गहरी बात कही। दिल में राई के बराबर बुग़्ज़ और हसद नहीं होता था। सबसे पहले अपने दिलों के अंदर की सफाई करें। अगर किसी के लिए कोई ऐसे जज्बात हैं भी, कोई बुग़्ज़ है भी, कोई हसद है भी, ये कुदरती तौर पे बाजुकात आ जाता है, इंसान नहीं भी चाहता तो भी अल्लाह से माफी मांगे, और जिसके बारे में है उसके लिए दुआ करें, अल्लाह उसकी मोहब्बत मेरे दिल में डाल। जिससे आपको नफरत महसूस हो रही है, जिस पे गुस्सा आ रहा है, उसके लिए दुआ करें, अल्लाह इसकी मोहब्बत मेरे दिल में डाल। कोई पता नहीं किसको नाराज करके अपने रब को नाराज कर बैठे, कोई पता नहीं किसको राजी करके अपने रब को राजी कर ले। इसी तरह एक बहुत खूबसूरत वाक्या किसी ने सुनाया कि एक बादशाह था, उसने कहा कि मैं एक मस्जिद बनाना चाहता हूँ और मैं इसमें किसी की मदद नहीं लेना चाहता, यानी कोई चैरिटी इसमें नहीं करेगा, टोटली जो है वो मैं खुद अपने पैसे से बनाऊंगा। जब वो तैयार हो गई, उसने कहा कि इसके बाहर मेरा नाम लिख दो। नाम लिख दिया गया। बादशाह ने ख्वाब देखा कि इस मस्जिद के बाहर फलां औरत का नाम लिखो। बादशाह बड़ा परेशान कि फरिश्ता आया है आसमान से और वो कह रहा है इसको मिटाओ और इसकी जगह पे एक औरत का नाम लिखो। वो बड़ा परेशान हुआ। बादशाह सुबह उठा, अपने कारिंदों को भेजा, जाओ देखो जाके मस्जिद के बाहर किसका नाम लिखा है। उसने कहा, उन्होंने आके कहा कि आपका ही नाम लिखा है, कोई मसला नहीं, वैसे ही आपको कोई ऐसा ख्वाब आ गया। दोबारा से अगले दिन फिर देखा, वही बात। तीसरे दिन फिर देखा। आखिरकार बादशाह परेशान हो गया। बादशाह ने कहा कि जाओ ढूंढो इस नाम की औरत कौन सी। उस औरत को ढूंढा गया, उसको लाया गया, उससे पूछा गया क्या तुमने इस मस्जिद के बनाने में कोई मदद की थी? वो डर गई बेचारी, सहम गई। उसने कहा बस अब तो मेरी शामत आ गई, अब तो मैं मरी गई। उसने कहा बादशाह सलामत, मैंने कोई मदद नहीं की इसकी। हाँ बस इतना है कि एक गधा बंधा हुआ था मस्जिद के बाहर, और वो प्यासा था, और पानी की बाल्टी थोड़ी दूर पड़ी थी, और वो बार बार आगे को होता था, पानी पीने की कोशिश करता था, लेकिन रस्सी छोटी थी, वो पानी पी नहीं पा रहा था। मैं वहां से गुजरी, मुझे उस पर तरस आया, मैंने वो बाल्टी आगे कर दी, उसने वो पानी पी लिया। बस बादशाह सलामत, इसके अलावा और कोई बात नहीं। इतनी छोटी छोटी नेकियां भी अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाती हैं। फर्क क्या है? फर्क क्या है? नियत। इतनी बड़ी मस्जिद बना के बीच में से कुछ भी नहीं मिला,
कोई अजर नहीं। और फिर जो नाम लिखवाना ना बाहर, इससे पता चल जाता है कि नीयत क्या थी। रब को राजी करना मकसद नहीं था। छोटी नेकी भारी होगी उससे, कि जो जिसकी बसात है, जो जिसकी वुसत है, वो उसके मुताबिक जो भी नेकी करेगा। आपका रब हमें हमसे ज्यादा जानता है। हो सकता है बहुत से लोग हैं कि जो इस साल परेशान हो कि हमने तो पिछले साल रोजे रखे थे, हम इस साल रोजे नहीं रख पा रहे, बीमार हैं। तो फिर उनके लिए भी क्या पैगाम है? अल्लाह के फैसलों को कबूल करें। अल्लाह ने बीमारी दी है, शिकवा शिकायत नहीं कर सकते। अगर सब्र करेंगे तो रोजेदारों जितना अजर पाएंगे। वो हदीस भूल गए क्या, कि जो हमेशा जो अमल करता रहता है और जब बीमारी की वजह से वो नहीं कर पाता या सफर की वजह से, तो वो उसके नामा अमाल में वैसे ही लिखी जाती है। बहुत सी ऐसी बहनें हैं कि जो दौरा कुरान करना चाहती हैं। इसी तरह मेरी एक दोस्त है, उसका मुझे फोन आया कि घर में कुछ ऐसी परेशानी है, कुछ ऐसी बीमारी है, मेरी बुजुर्ग हैं, मैं उनको छोड़ के आ नहीं सकती और मैं रो रही हूँ और मैं आना चाहती हूँ दौरा कुरान, मैंने लाइव अटेंड करना है और कोई नहीं है जो उनको देखे। तो मैंने कहा उनकी खिदमत करना आपके लिए ज्यादा अजर का बायस है। तो इसलिए परेशान नहीं होना। अगर पहले तरावियां पढ़ते थे, पूरा पूरा सिपारा पढ़ते थे, अब नहीं तो जितनी पढ़ी जाती है बैठ के पढ़ ले, लेट के पढ़ ले, अल्लाह सुब्हाना ताला कबूल करेगा। वो बड़ा ही रहीम है, वो बड़ा ही करीम है। तक़द्दम, जिसने ईमान और एहतसाब के साथ रोजे रखे। क्या क्राइटेरिया अल्लाह सुब्हाना ताला ने बता दिया अपने नबी के जरिए? जिसने ईमान के साथ और एहतसाब के साथ, कि अपने आप को चेक करना है, अपने आप को कटहरे में खड़ा करना है, मेरे अंदर कौन कौन सी खामियां हैं, कहाँ कहाँ मैं अपना वक्त जाया करती हूँ। और सबसे ज्यादा जो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है वो क्या है? जुबान की हिफाजत। ये चुगली, ये गीबत, ये ताने, फजूल गपशप, फजूल वक्त जाया करना, हर चीज को चेक करें। ऐसे ही बाज लोग होते हैं कि वो ड्रामे देख देख के रमजान गुजार देते हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है हम पे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने तरफ आने का रास्ता दिखा दिया, वरना हम भी इसी तरह करते थे, इन्हीं अंधेरों में थे। और क्या लगता था कि बड़ी नेकी का, रोजे तो रख रहे हैं ना, सवाब वैसे ही बहुत मिल रहा है, तरावी भी पढ़ लेते हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, बहुत सौ से हम बेहतर हैं। नहीं, मुझे बहुत सौ से बेहतर नहीं होना, मुझे नंबर वन बन, इस दफा ये कोशिश करनी है। पिछले जितने रमजान गुजारे हैं ना, उनमें सबसे बेस्ट रमजान समझ के गुजारे। जितनी अब जिंदगी आप कह लें कि बेयकीन हो गई है ना, इससे पहले नहीं थी। नौजवान नौजवान जा रहे हैं। मौत अब उम्र की मोहताज नहीं रही। पहले होता तो कोई इक्का दुक्का जवानी में जाता था, अब जिसको आप फोन कर ले दो चार सुना देंगे। जो वक्त हमें मिला हुआ है ना, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान। ये एक एक सांस जो है ना, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। इसी तरह अब्दुल रहमान अल अरीफी हैं, अरब के अंदर बहुत बड़े स्कॉलर हैं। वो कहते हैं मैं एक दफा हॉस्पिटल गया। वो कहते हैं मैं इस तरह चला जाता हूँ हॉस्पिटल्स में,
वो बुक्स बड़ी खूबसूरत लिखते हैं। तो और कभी कहते हैं मैं पागल खाने चला जाता हूँ ताकि मैं सीखूं वहां जाके। तो कहते हैं मैं एक दफा गया इस तरह, तो वहां पे चीखो पुकार की आवाज आ रही है और नर्सें खड़ी हैं, डॉक्टर्स खड़े हैं। मैंने कहा कि क्या हुआ है? कहते हैं कि जब भी हम इस मरीज को खाने के लिए कुछ देते हैं तो इस तरह ही चीखता है, रोता है, दर्द इतना होता है। हालांकि कहते हैं मैंने कहा कि इसको आप सकील गजा ना दें, आप हल्की चीजें, इनका खिला तो कुछ सकते नहीं है, वो तो जो नाली है उसके थ्रू हम सिर्फ दूध देते हैं। तो जब भी दूध देते हैं वो इतना ही चीखता चिल्लाता है जब तक कि वो हजम ना हो जाए। अल्लाह ने हमें कितनों पे फौकियत दी। छोटी सी तकलीफ आती है, हमें वो तकलीफ याद रहती है, जो उसके एहसानात हैं, जो उसने इनामात हम पे किए, वो सब भूल जाते हैं। इसी तरह वो कहते हैं कि एक मरीज था, बेहोश पड़ा है, 1 मिनट में 9 दफा सांस ले रहा है, यानी सांसें खत्म हो रही। उसके पास उसका बेटा बैठा और बेटा उस बाप के कान में कुछ कहता है कि अब्बा जान, लोग जो है ना, ये हमारे खानदान में हो रहा है, फलां की शादी है, फलां जो है वो आपको देखने के लिए आए, दुनिया की बातें करता है। बाप की सांसें वैसी चल रही। साथ ही कहता है अब्बा जान, वो कौन थे? वो मुअज्जिन थे, इमाम मस्जिद थे, अजान देते थे, नमाजें पढ़ाते थे। तो कहा अब्बा जान, आपके बगैर मस्जिद वीरान हो गई है। अब्बा जान, जब से आप यहाँ आए हैं, जो मुअज्जिन है वो गलतियां करता है, नमाज में गलतियां करता है। अब्बा जान, नमाज का वक्त हो गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो कहते हैं, जो अला रईफी, वो कहते हैं कि मैंने अजान देना शुरू कर। कहते हैं जैसे ही मैंने अजान, बेहोश शख्स, जैसे ही मैंने अजान दी है, कहते हैं वो जो 9 पे थी उनके सांस 1 मिनट के अंदर वो 18 पे आ, सांस की जो वो यानी जो मिकदार थी, तादाद थी, वो बेहतर हो गई। और कहते हैं जैसी अजान बंद हुई फिर वही हालत। कैसे लोग हैं ये? वो भी हमारे जैसे इंसान है ना, कि बेहोशियों में भी वो रब को नहीं भूले, मौत की बेहोशियां तारी है। अल्लाह का जिक्र आने से उनकी सांसें और उनकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। तो रमजान कैसे गुजारना है? ईमान के साथ और एहतसाब के साथ। जिसने रोजे रखे उसके गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ, एक नई जिंदगी का अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मौका दे रहे हैं। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खसलतें जिसमें होंगी वो मुनाफिक है। जानते हम सब टिप्स में। अब साथ में क्या फरमाया? अगरचे वो नमाज पढ़े, रोजे रखे, हज उम्रे करे, वो मुनाफिक है। और वो कौन सी है? आज हर दूसरा मुसलमान इस बुराई में नजर आता है। क्या? जब बात करे तो, जब वादा करे तो, जब अमानत रखाई जाए तो खयानत करे, मुनाफिक। ये मुनाफिक की इलामात हैं। और आज अपनी उम्मत को देख लीजिए, आज पाकिस्तानियों को देख लीजिए, कि जहां मशहूरी है ना हमारी, वो किस पे है? झूठ पे, धोखे पे, अनफेयर मीन्स, गलत काम जितने मर्जी करा दें पूरी दुनिया में। तो फिर झूठ को छोड़ना है, वादा खिलाफी को छोड़ना है, जो अमानतें हमारे पास है उसमें खयानत नहीं करनी। वरना कोई हज, उम्रा, रोजा, नमाज कुछ भी काबिल को। इसी तरह सूरह हज में है, लोगों में से कोई ऐसा भी है जो किनारे पर रहकर अल्लाह की इबादत करता है। कुरान की आयत है। हम भी आज यही चाहते हैं ना, किनारे किनारे चले बस, दुनिया भी रखें और दीन भी रखें। दुनिया के फायदे भी हासिल करें। अगर कोई भलाई मिल जाती है तो अल्लाह से राजी रहता है, और अगर आजमाइश आती है तो वापस पलट जाता है अपने चेहरे पर। तो फिर हमने कैसा मुसलमान बनना है? सारी जो इबादत होती है ना, ये ईमान के साथ होती है।
جب اندر انسان کے ایمان کی جیسے جیسے ایمان کا لیول بڑھتا جاتا ہے، اس کی تھکاوٹیں، اس کی بیماریاں، ہر چیز دور ہونا، جہاں پہ ہم کمزور ہوتے ہیں نا، وہاں پہ شیطان غالب آ جاتا ہے۔ یہ جو سارے کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے کروانے ہیں، آپ عام روٹین میں ذرا دیکھیں، رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی طاقت اور قوت دیتے ہیں۔ عام دنوں میں بھی اگر روزہ رکھ لیں تو آپ دیکھیں کہ دوپہر کے وقت کوئی فیلنگ ہی نہیں، روزہ پورا ختم ہو رہا ہے، کوئی فیلنگ نہیں، کوئی بھوک نہیں، کوئی، اور ہم خود بھی کہتے ہیں کتنا مزیدار اور کتنی خوشی ہوتی ہے جب روزہ کھولتے ہیں۔ عام دنوں میں آپ دیکھ لیں، بھوک لگی ہوئی ہو، کھانا نہ کھایا، اور سحری کے ٹائم کا ہم نے اگر کھایا ہوا ہو تو بھوک سے ہم سو نہیں سکیں گے، روزے کی حالت میں نیند بھی بڑی اچھی آ جاتی ہے۔ کیسا خاص کرم ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کیسی قوت ہوتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے یہ کون سی ہمارے پاس اس وقت نعمت ہوتی ہے، ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ یہ زبان تھوڑے عرصے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بند کرواتے ہیں نا، ایک ٹائم فکس کر دیتے ہیں، تو اس موقع پہ کیا ملتا ہے، پھر ہمارے ایمان کو بڑھانے کا موقع ملتا ہے۔ اور حقیقت ہے کہ اس کے بغیر پورا سال کوشش کر لیں، جو قرآن کی سمجھ، جو دعاؤں کو مانگنے کا لطف یا نمازوں کا لطف رمضان میں آتا ہے، وہ اس کے علاوہ آ ہی نہیں سکتا۔ باقاعدہ طور پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم چل کے آگے واقعی ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں، واقعی فرشتوں کے پروں پہ ہم پاؤں رکھ رہے ہیں، یہی فیلنگ ہوتی ہے نا، سب چیزیں بھول جاتی ہیں۔ ہر ایک کو فون کر کر کے بتا دیا 1 مہینے کے لیے میں ذرا جا رہی ہوں، چلا یہ بھی ہمارا ایک طرح کا اعتکاف ہے، ایک طرح کا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کو محسوس کر سکے، اس کی محبت کو بھی دیکھیں، اور ساتھ ساتھ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں نا، وَاللَّهُ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنے نفس سے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے، ہم نے بڑا لائٹ لے لیا، وہ جتنی محبت کرنے والا ہے، جتنی شفقت کرنے والا ہے، وہ اگر ناراض ہو جائے نا تو اس جیسی سزا بھی کوئی نہیں دے سکتا۔ تو یہ ایسا موقع ہے رمضان کا، رمضان اور قرآن۔ قرآن تو ہم ویسے بھی پڑھتے تھے، ساری زندگی سے پڑھتے آئے، لیکن کب انسان کے دل کی کیفیت بدلتی ہے، جب سمجھ آ رہی ہے کہ رب چاہتا کیا ہے، کیسی بنوں گی میں تو رب راضی ہوگا، ایسے انگلی پکڑ کے رب چلاتا ہے نا قرآن، جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے ایسے کہ جیسے روزانہ ہمیں آئینہ دکھایا جاتا ہے، ایسے دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اصل بات کیا ہے، جیسے کسی کی سالگرہ ہوتی ہے نا، گو کہ یہ مثال دینا کوئی پسندیدہ نہیں ہے، اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن صرف بتانے کے لیے کہ اس کا خاص دن ہوتا ہے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ جو رمضان ہے، یہ کس کا مہینہ ہے؟ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ جو بڑے بڑے عالم گزرے نا، یہ ان کا طریقہ ہوتا تھا، بڑے بڑے جو بزرگ گزرے نا دین کا کام کرنے والے، وہ ایک وقت روٹی کھاتے تھے، اور کبھی کبھی تو کہتے تھے کئی کئی دن گزر جاتے تھے، جب عشاء میں کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا تو مجھے یاد آتا تھا کہ اوہ میں تو کل کا کھانا کھایا ہوں، بھول جاتے تھے وہ سب کچھ۔ اور ہمارے دسترخوان پورا سال اتنا نہیں سجتے جتنا رمضان میں سجتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلطی تو کی ہے، لیکن ہمارا معاشرہ ہی ایسا بن گیا ہے کہ اب ہم کچھ کر نہیں پاتے۔ اگر ہم چاہیں بھی نا، صرف اپنی ذات ہو، ہمارے بڑوں کی بات ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اب یہ جو بچے ہیں ہمارے، جو پورے معاشرے میں سے سیکھ کے اور سمجھ کے آتے ہیں کہ فلاں کی ماما تو یہ کچھ بناتی ہیں، اگر دسترخوان اپنے ہلکے بھی کرنا چاہے نا تو ہمارے بس میں بات رہی نہیں، اللہ سے دعائی کر سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سادگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کو بھی اس میں ہمارا معاون و مددگار بنائے۔ وہ وقت جو اتنا وہاں پہ ضائع ہوتا ہے نا،
अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे कोई हमसे बेहतरीन काम करवा लेंगे। बहरहाल कोशिश फिर भी हमने करते रहना है जहां तक हो सके कि कुछ ना कुछ दस्तरखान को कम करें। और इस दफा तो वैसे ही हम बड़े दुखी होंगे कि जो फलस्तीन में हो रहा है, वहां पे बच्चों की जो हालत है, वो पानी के लिए रो रहे हैं। वो दूध तो उनको मिलना बहुत दूर की बात है, साफ पानी उनको नहीं मिल रहा, खुराक नहीं मिल रही, अपने घरों से वो निकल चुके हैं, अपने रिश्तेदारों से बिछड़ चुके हैं। अल्लाह रहम करे। इसी तरह एक बुजुर्ग ने कहा कि अल्लाह की खौफ की मिसाल ये है कि जब तक कोई शख्स घर में रहता है वो घर आबाद रहता है। जिस जिस्म में खौफ इलाही हो वो आबाद रहता है, और ये निकल जाए तो जिस्म खराब हो जाता है। तो ये बेहतरीन मौका है कि जो हम कुरान पढ़ के हमारे दिल के अंदर नरमी आएगी ना, कोई और तरीका हो ही नहीं सकता खौफ इलाही। ऐसे लगता है कि अब नाजिल हो रहे हैं वो अल्फाज। हकीकत है। पिछले साल जब मैं दौरा कुरान, कभी कभी ऐसा होता है, पिछले साल तो जब मैं दौरा कुरान करवा रही थी तो मेरे से बोला ही नहीं जाता था। फिर मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला तू मुझे इतनी हिम्मत और इतनी ताकत दे कि ये अल्फाज अदा करने आसान नहीं है। किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए कुरान नाजिल हुआ है, ये हमारे साथ मामले पेश आने वाले हैं कि मैं इन अल्फाज को अदा कर सकूं, जो काम मैंने करना है वो मैं कर सकूं। उसके बाद आप यकीन करें कि मैं बोलने के काबिल। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सब के दिलों की एक कैफियत बनाए, रियाकारी से हमें बचाए। लेकिन हकीकत है कि जो तकवा और जो खौफ इलाही कुरान को पढ़ के आ सकता है, कोई और तरीका नहीं उसका। जिस तरह अल्लाह समझाता है कोई बात समझा ही नहीं सकता। और अभी बिन काब कहते हैं इसकी मिसाल इस दरख्त जैसी है जिसके पत्ते खुश्क हो चुके हैं, और जब हवा तेज चलती है तो उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं। एक हवा चलती है, जैसे खौफ इलाही से रोंगटे से खड़े होते हैं ना, अगर आपके होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का शुक्र। क्या होगा, सारे जो गुनाह थे ना वो झड़ जाते। तो पिछले सारे बोझ उतार दे, जो जो किसी के साथ ज्यादतियां की हैं, जो भी किसी के साथ हमने हक तलफियां की हैं, किसी की गीबत की है, किसी के लिए बुरा सोचा है, खोल के रख दे अपने रब के आगे सारा कुछ, अपना मुकदमा उसके आगे रख दे। वो जितना बंदे की तौबा से खुश होता है ना, इससे ज्यादा किसी चीज से खुश नहीं होता। वो तो चाहता है कि मेरे बंदे मेरे पास आए, मेरे आगे झुके, इकरार करे, वरना तो फरिश्ते मौजूद है जो कोई गुनाह ही नहीं करते। तो ये बेहतरीन वक्त है अपने रब को मनाने का, ये बेहतरीन वक्त है नेकियों को बढ़ाने का, और ये बेहतरीन वक्त है तौबा इस्तगफार का। और क्या होता है रमजान में, हर रोज मगरिब के वक्त गर्दनें कहाँ से आजाद होती, जहन्नम से। हर रोज जरा सोचे तो सही, उस आग का तसव्वुर तो करें कि जिसके बारे में हदीस आती है कि उसके अंदर से, जहन्नम के अंदर से एक गर्दन निकलेगी जो हशर के मैदान में से अपने शिकार को उचकेगी, वहां से यूं जैसे, आजकल तो ये समझना कोई मुश्किल नहीं रहा, जैसे क्रेन होती है और उसके आगे वो एक उसका होता है जिससे वो कोई भी चीज लिफ्ट कर लेते हैं, वो वहां से वो उचकेगी और ले जाके जहन्नम में फेंक। तसव्वुर करें कि उस वक्त क्या खौफ व हरास होगा। हर रोज उस जहन्नम से आजाद किया जा रहा है। 3 दफा आप दुआ मांगते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला माफ कर देते हैं। जहन्नम भी दुआ करती है कि अल्लाह ताला इसने मुझसे पनाह मांगी है, इसको माफ कर। अरबी में मांग ले, नहीं तो उर्दू में मांग ले, अल्लाह मुझे आग से बचा। उठते बैठते ये दुआ, अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, अल्लाह तू हमसे, हम तेरा अजाब नहीं सह सकते, अपने मुकर्रबीन में शामिल कर। जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते,
इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बताया तो अबू बकर ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारे लिए भी खोले जाएंगे? अबू बकर, तुम उन्हीं में से हो। सुभान अल्लाह। सारे दरवाजे दुनिया में उनको ये खुशखबरी सुना दी, सारे दरवाजे खुले होंगे। अल कुरान हुज्जतुन लका औ अलैक, ये कुरान तेरे हक में या तेरे खिलाफ हुज्जत होगा। अब ये हमारी मर्जी, इस जैसी सिफारिश कोई नहीं करेगा रोजे क़यामत। और एक और बड़ी खूबसूरत हदीस है जामे तिर्मिज़ी की, जो शख्स कुरान पढ़ते रहने की वजह से मांग ना सका, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, कोई भी हमारी जरूरत है, तो उसके लिए क्या है, इसे तमाम मांगने वालों से बेहतर अता करूंगा। कुरान का पढ़ना इतना अहम है कि जो कुरान के पढ़ने की वजह से कुछ मांग नहीं रहा, मांग नहीं सका, टाइम थोड़ा है, अल्लाह ताला के कलाम का मर्तबा बाकी तमाम कलामों पर ऐसा ही है जैसे खुद अल्लाह ताला का अपनी मखलूकात। तो ये रमजान आ रहा है और कुरान हम पढ़ने जा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला उसको हम बैठ के भी समझेंगे, उसकी तिलावत भी करेंगे और उसको कयाम में भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये वो कलाम है कि जो किसका है, रब्बे कायनात का कलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम सुफियान सौरी की वालदा ने अपने बेटे से कहा, बेटा इल्म हासिल करो, मैं सूद काट कर तुम्हारा खर्चा मुहैया करूंगी। बड़ी समझदार खातून थी। अब वो क्या करती थी कि सारी रात क्या कहते हैं, चरखा चलाती थी और जो पैसे होते थे वो अपने बेटे की पढ़ाई के लिए बचा बचा रखती थी, साथ तरबियत भी करती थी। वो कहती है कि जब वो इल्म हासिल करते तो कहती, बेटा तुम्हारे तक़वा, खशियत और खौफ इलाही में कुछ इजाफा हुआ। किसमें? तुम्हारे तक़वा, खशियत और खौफ इलाही, तीनों समझ लें कि एक ही चीज के तीन नाम हैं। इल्म हासिल कर रहे हो तो कुछ इजाफा हुआ अल्लाह के खौफ का। मेरे लखते जिगर, अगर तुम्हें महसूस हो कि तुम्हें इन हरूफ से कुछ फायदा नहीं हुआ तो ऐसा इल्म तुम्हें कोई फायदा ना दे। बड़े दौरा कुरान हमने कर लिए, बड़े रमजान हमने गुजार लिए, बड़े हज उम्रे कर लिए, लेकिन इतना इल्म आ जाने के बाद अगर अमल नहीं बदल रहा ना, तो हम खाली के खाली, कोरे के कोरे। जैसा कि अब्दुल्ला बिन मसूद क्या कहते हैं कि हम 10 आयात भी पढ़ते थे ना, जब तक कि हम उस पे अमल नहीं कर लेते थे हम आगे नहीं बढ़ते थे। तो इसलिए मेरी प्यारी बहनों, ये रमजान हमें बदलने वाला रमजान हो। वाज़े फर्क हर लिहाज से, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ इबादत, हमारे मामलात ज्यादा मुश्किल चीज है। हर वक्त 24 घंटे जो है ना, अल्लाह के बंदों को राजी करना ज्यादा मुश्किल। और फिर जब आप कुरान वालियां हो, जब आप दर्स वालियां हो, तो फिर ज्यादा ही इंसान जो है ना वो अटैक में होता है। हर एक के लोग, तुम तो कुरान पढ़ती हो, पढ़ाती हो। अल्लाह हमें साबरा शाकरा बनाते हैं। अल्लाह हमारे इखलाक इतने बुलंद कर दे कि हर कोई कहे कि हाँ ऐसी ही होनी चाहिए कुरान पढ़ने वालियां, ऐसे ही, जैसे कि अल्लाह सुब्हान ताला कुरान में कहते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला हमें दिखाएंगे कैसी होती है फस्सालिहातु क़ानितातु, कैसी होती है फर्मा बरदार होती है, नेक होती है, नेकियों में सबकत करने वालियां होती है। हारून रशीद के पास इब्ने समाक आए तो उन्होंने कहा, मुझे कुछ नसीहत कीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये आपके पास पानी का एक गिलास है, इसका एक घूंट पानी के बदले आपकी सारी बादशाहत अगर ले ली जाए, वरना आप प्यासे रह जाएं, तो क्या आप एक घूंट की खातिर अपनी बादशाहत दे देंगे? तो क्या कहा हारून रशीद? उसने कहा कि हाँ दे दूंगा।
दे दूंगा। तो क्या कहा उन्होंने, इब्न समाक ने, उन्होंने कहा तो फिर एक घूंट की खातिर ये सारी लुटा देने वाली जायदाद, ये सारी बादशाहत, उस पे तकब्बर कैसा, उस पे फख्र कैसा। तो हम भी बादशाह हैं अपने अपने घरों में, हम भी शहजादियां हैं अपने अपने घरों की, कि नहीं? जो कुछ बना के रखा है, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए कोई मुश्किल, तो इंसान कहता है ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो, मेरी जान बचाओ, है कि नहीं? तो क्या है इंसान, एक मिट्टी का ढेर है। अल्लाह ने हमें इतना शर्फ दिया, वो मकाम अता फरमाया, उसका एहसान है। हमें फरिश्तों से अफजल करार दिया। हम्म? जन्नात हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन वो भी क्या है, मजबूर है, उनकी तरफ में नबी नहीं भेजा गया, वो भी इसी शरीयत को फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह एक उस्ताद है हमारे, तो वो कहते हैं कि जब मैं कुरान पढ़ा रहा होता था तो पंखा हिल रहा होता था, तो मैंने गौर नहीं किया। तो कहते हैं कि फिर मेरे कुछ शागिर्द थे, उन्होंने मुझे बताया कि आपसे जिन्नात ने भी कुरान सीखा है। कहते मैंने इग्नोर कर दी वो बात। फिर कहते एक और के जरिए मुझे पता चला कि जो जिन्नात हैं उनकी जमातें आती हैं और वो आपसे कुरान सीखती हैं और वो पंखे पे बसेरा करती हैं। तो कहते तब मुझे पता चला, अल्लाह ने आपको चुना है, आपको ये मकाम दिया है, ऐसे इज्जत के साथ आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी बहन को जिंदगी दे, खुशियां दे, जो आपके लिए इतना बेहतरीन इंतजाम करके रखती हैं। अल्लाह ने कितनी आसानियां हमारे लिए कर दी, हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, सब पैदल चल के आ जाते हैं। अगर किसी को कोई इंतजाम करना भी पड़ता है, कोई रिक्शा है, कोई गाड़ी, कोई उबर, कोई मसला नहीं है। जो अजर, जो बदला मिलने जा रहा है उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। दुनिया के कामों के लिए अपने बच्चों को भेजने के लिए भी क्या उनके लिए हम डेली का कोई इंतजाम करते नहीं? अभी तो एक महीना है, और लोगों को भी लेके आए, और लोगों को मदऊ करें, पैगाम पहुंचाए जहां तक पहुंचा सकते हैं, ये अल्लाह का पैगाम। और जो कोई आपके कहने पे आ जाएगा, पूरा हिस्सा आपको भी मिलता रहेगा उसकी, वो भी सुनता रहेगा, वो भी अमल करेगा, और आप एक सदका जारिया दुनिया में छोड़ के जाएंगे। हर बंदा कम से कम अपने साथ एक एक बंदा तो लाए। अगर कहीं और हो रहा है, कहीं करीब हो रहा है, उधर को चले जाए। बात यह है कि इस कुरान से जुड़ना है और इसको समझना है। अगर मेरी बहनें नहीं आ सकती या की कोई बीमारी में इजाफा, अल्लाह से अगर दुआ करें ना 2 नफल पढ़ के, तो मैं समझती हूँ हर एक के लिए अल्लाह आसानियां करे। और अगर नहीं आ सकती हैं तो फिर घर में किसी ना किसी का, हमारा भी जूम पे है, इसके अलावा आप जिसको भी सुनना चाहें, 2 घंटे अपने लिए रखें, कुरान खोलें, घर में बैठे, औरों को, अपनी मुलाजमों को, किसी हमसाई को बुला लें। अब यकीन करें, पहली दफा मैंने इसी तरह डॉक्टर फरद हाशमी का जाके लाइव सुना था, अगली दफा मैं नहीं जा सकी हूँ, तो हम एक आंटी के घर इकट्ठे हो जाते थे। और उस जमाने में टेप रिकॉर्डर चला करते थे, वो केस्टें लगानी पड़ती थी, निकालनी पड़ती थी, इतना लंबा चौड़ा काम होता था, और हम बैठ के सुनते थे, अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय करते थे। तो अब तो इतना आसान है, अब तो आपने एक उंगली दबानी है तो कोई मसला ही कोई नहीं, खुद जाना है उठा के जिधर मर्जी ले जाएं। हर एक एक घर में दो दो तीन तीन लोग सुन सकते हैं जूम पे, इकट्ठे नहीं बैठना चाहते, हर एक की अपनी, कोई किचन में मसरूफ है, कोई कोई और काम कर रहा है, कोई सफर में है, कोई ड्राइव कर रहा है, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को मोटिवेट, किसी और का लिंक चाहिए, वो पूछे आप हमसे, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इस पैगाम को आगे हमने फैला, इसके लिए हमने अपना हिस्सा डालना। कोई पता नहीं किस वक्त मुझे यहाँ से जाना पड़े, तो हमारे हाथ खाली, यकीन करें कुछ भी नहीं हमारे हाथों। इतनी इतनी उम्रें हमने गुजार ली हैं, जवानियां हम ज्यादातर औरतें गुजार चुकी। एक फिलिपाइनी औरत, घरों में काम करने वाली, अब्दुल मालिक मुजाहिद ने अपनी किताब में उनका उसका वाकया लिखा था, जो दारुसलाम के मालिक है, हम जानते हो कि अक्सर मैं भेजती हूँ। तो वो कहते हैं कि एक खातून, वो घरों में काम करती, घर घर मेहनत करने वाली, बर्तन धोने वाली, सफाइयां करने वाली, अपने इलाके से किसी और अरब ममालिक में आएगी, वहां पे करती, और जैसे ही काम खत्म होता ना, भाग के जाती, सड़क पे कोई मिल जाता ना, उस तक अल्लाह का पैगाम पहुंच जाता।
कहते हैं कि एक बहुत बड़े स्कॉलर को कहा गया कि आज आपने आना है और 650 लोगों ने आज इस्लाम कबूल करना है। तो एक औरत जो है वो भागी भागी आए, स्टेज पे जाए, कभी एक कसकार सीधा करे, कभी किसी को बताए कि तुमने इस तरह पढ़ना है, अशहदु अल्ला इलाहा, इस तरह करके ना उनकी प्रैक्टिस करा रही हो। अब जो स्कॉलर साहब बैठे हुए थे, उनको गुस्सा आ रहा कि ये कौन औरत है जो आ रही है, कभी एक के काम में कुछ कह रही है, कभी दूसरे काम में कुछ कह रही है, कभी तीसरे काम में कुछ कह रही है। तो उनको बताया गया कि यही तो वो औरत है कि जिसकी वजह से ये 650 लोग आज इस्लाम कबूल करने जा रहे हैं। ना कोई इल्म, ना कोई दुनियावी स्टेटस, ना कोई शक्ल सूरत, और काम देखे। बहुत शर्म आई मुझे ये सुन के और ये पढ़ के। हमने तो कुछ भी नहीं किया। कितनी आसानियां हमारे घरों में, मददगार मौजूद है। एक फोन करते हैं, रोटी नहीं पकी है, रोटी आ जाए। एक फोन करते हैं, आज खाना बाहर से आ जाए। है कि नहीं सहूलतें? जो चाहते हैं, जिस वक्त चाहते हैं हम कर सकते हैं, और वो लोगों की खिदमतें कर रही है। और जो सिर्फ फर्क क्या है उसका और हमारा? ईमान का। उसने इस दुनिया की हकीकत को जान लिया है और हमने इस दुनिया को जन्नत समझ लिया है। अगला जो घर जन्नत का था उसको हम भूल गए। सिर्फ फर्क इतना है, हम यही रहना चाहते हैं और वो लोग अपनी आखिरत की तैयारियों में दौड़ रहे हैं। इसी तरह एक लड़का 16 बरस का, मैं आज थोड़ा सा कुरान और हदीस, क्योंकि कुरान हमने आगे इंशाल्लाह ताला पढ़ना है, मैं आपको ये वो वाकयात सुना रही हूँ कि जो आज के दौर के रियलिटी के वाकयात। वरना अल्हम्दुलिल्लाह आपको सारी हदीस भी याद होंगी जो रमजान के मुतालिक हैं, और इसी तरह आयात भी सब याद होगी। तो मैं ये वो वाकयात बता रही हूँ कि जो आज के दौर में ये लोग भी इसी, हम कहते हैं ना कि आज के दौर में ईमान अपना बचाना और दीन पे चलना बड़ा मुश्किल। ये चुने हुए लोग हैं। एक लड़का 16 बरस का, हर वक्त कहते हैं कि नमाज रोजा मस्जिदें, नेकियों में दौड़ने वाला। उम्र क्या है? 16 साल। एक दिन मस्जिद में गया और मस्जिद में जाके कुरान उठाने लगा पढ़ने के लिए, इतने में हार्ट अटैक हो गया। शदीद हार्ट अटैक था। उसको उठाकर हॉस्पिटल लेके गए। वहां पे दो डॉक्टर्स उसके ऊपर थे, हार्ट स्पेशलिस्ट भी आ गया। इस बच्चे की सांसें जो है खत्म हो रही थी। इस बच्चे ने डॉक्टर के कान में कुछ कहा, तो उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और फौत हो गया। जैसे ही फौत हुआ तो डॉक्टर फूट फूट के रोने लगा। फूट फूट के, तो सब लोगों ने कहा कि क्या पहले आपके पेशेंट्स नहीं मरते? ये कोई पहली दफा मरा है? आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? क्यों इस तरह रो रहे हैं? तो कहते हैं कि मुझे, और आपके कान में क्या कहा था? तो कहते हैं उसने कान में कहा था कि मेरा वक्त आ गया, आप डॉक्टर्स अपना वक्त जाया ना करें। खुदा की कसम, मैं इस वक्त जन्नत में अपनी जगह देख रहा हूँ। ये 21वीं सदी का वाक्य है, सच्चा वाक्य है। तो अल्लाह करे जब हम पर भी मौत का वक्त आए तो हमारे भी ईमान की ये कैफियत हो कि खुदा की कसम में जन्नत में अपना मकाम देख लें। ये खुशकिस्मती है। सिर्फ 16 साल में इस दुनिया से चला, लेकिन कैसी खुशकिस्मती। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ऐसा मोमिन बनाए कि जो अंदर से भी आजिज़ी और इंकिसारी में डूबे हुए हो, और बाहर से भी हर एक के काम आने वाले, हर एक की मदद करने वाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि एक महीने का तवाफ, सॉरी, वहां पे काबे का तवाफ करना और एक महीने का वहां पे
قیام کرنا مجھے اس بات سے زیادہ عزیز ہے کہ میں کسی ضرورت مند کے ساتھ جاؤں اور اس کی ضرورت کو پورا کروں. تو یہ مہینہ جو ہے نا صرف عبادات نہیں کرنی بلکہ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں. جو جس کی کوئی پریشانی ہے اس کی پریشانی میں معاون و مددگار بن جائیں. اس کے لیے اور کچھ کر نہ سکیں تو دعا تو کریں اس کے لیے. کم از کم 2 لفظ تو اچھے بولتے ہیں. تو یہ وہ مہینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ یہ خیر خواہی کرنے کا مہینہ ہے. پورے سال پھر اس کا اثر رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ مہینہ اس میں سے جب ہم گزریں تو ایسے ہوں کہ بالکل نکھرے ہوئے ہوں, بالکل بدلے ہوئے ہوں, اپنے رب کو راضی کر کے نکلے اس مہینے میں سے, اور پھر ایسا ہو کہ اس کے بعد ہم بدل جائیں. اور اللہ سے یہ دعا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر سال جب بھی رمضان آتا ہے اس کے بعد ہماری زندگیوں میں کچھ نہ کچھ ایسا چینج ضرور آنا چاہیے, ایسا نیکیوں میں اضافہ ضرور ہونا چاہیے. الحمدللہ اس دفعہ میں سوچ رہی تھی, میں نے پچھلے سال بڑی دعائیں کی تھی کہ اللہ تو اس سال میں کوئی اچھا کام کروا, تو مجھے لگا کہ کوئی خاص نہیں, بس یہ ہے کہ یہ تجویدی کلاس ہم نے شروع کر دی. الحمدللہ 55 لوگ ایسے ہی منٹوں میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ عطرت کو ہمت دے, طاقت دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہترین کام لے, لیکن ایک کہہ لیں کہ چھوٹا سا قدم ہم نے اٹھا دیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہر سال آنے والا جو سال ہے, ہر سال کے اندر اسی طرح ہم اور کوئی نیکی کے کام, کوئی بڑے بڑے کام, چیریٹی کے کام کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. قرآن سب نے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرنی ہے. میں عطرت کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میری رمضان میں اگر 10:15 کلاس ہے تو آپ لوگ کوشش کریں 9:45 آ جائیں, 9:30 آ جائیں, اور آ کے آدھا پونا, ٹھیک ہے بیٹے, ہاں آدھا پونا گھنٹہ, کوئی 15 منٹ لے سکتا ہے تو 15 منٹ, جتنا بھی اپنے گھر کے حساب سے دیکھ لیں. آپ کی روزانہ کی بنیاد پہ اپنا ٹارگٹ رکھیں کہ جب قرآن میں نے اس طرح سے پڑھنا ہے, اور رمضان میں کیونکہ پڑھا بھی زیادہ جاتا ہے, پریکٹس کا موقع بھی زیادہ مل جاتا ہے. آپ نے یہ نہیں کوشش کرنی کہ آپ نے پورے کے پورے قرآن ختم کرنے ہیں. اگر آپ کے 1-2 سپارے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں نا, پورا قرآن اگر آپ نہیں بھی, اگر ویسے اگر 5 پڑھتے تھے تو 1 پڑھ لیں, اس کی تعداد کم کر دیں, لیکن جو پڑھتے ہیں کم از کم وہ صحیح کر لیں. یہ ٹارگٹ اپنا بنا لیں کہ میری کوئی بھی جلی غلطی نہیں ہونی چاہیے, میں جو بھی پڑھوں وہ میں صحیح پڑھوں, اس میں مجھے گناہ نہیں ملنا چاہیے. میں اجر کے لیے پڑھتی ہوں اور میری غلطیاں نکلتی ہیں. اگر اس دوران کسی کا سن سکتی ہیں تو بہت بڑی نیکی ہے. سوچ لیں کہ پھر آپ کو 70 سے وہ ملٹیپلائی. کسی کی ایک غلطی نکالیں گے تو آپ سوچیں کہ آپ کتنا اجر کمائیں گے. جب تک وہ پڑھتا رہے گا ساری زندگی ہمارے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی. آج کل جو بھی کلاس ہو رہی ہے, جو بھی سبق ملتا ہے, جو لگتا ہے تھوڑا سا کمزور ہے, اس کو خود فون رکھ کے کہہ دیں کہ تم مجھے سنا دیا کرو, مجھے وائس میسج بھیج دیا کرو. یہ چھوٹی چھوٹی سی نیکی ہے, یہ کچھ بھی نہیں. اگر ہم جیسے میں نے آپ کو واقعات سنائے ہیں نا, یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. لیکن اسی طرح انسان چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیتا ہے نا, تو پھر وہ آہستہ آہستہ تیز بھاگنے لگتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جما دے. اور کوئی بات کوئی کرنا چاہے تو